एज सौरभ सेड कि उन्होंने फेज़ 1 के बाद वेट नहीं किया, ही जस्ट स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन ऑफ फेज़ 2. Team, today we have another topper with us. So we have Mr. Saurav Negi with us, and he has cleared NABARD Grade A 2023 exam from IT specialist post. So first of all, congratulations, Saurav. Okay. So Mr. Saurav was a working aspirant. ये TCS में काम कर रहे थे while he was preparing for different government examination. एंड NABARD के बारे में इनको 2022 में पता चला एंड ही फिल्ड द फॉर्म इन 2023. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इन्होंने नोटिफिकेशन के बाद तैयारी की, एंड तैयारी के लिए इन्होंने हमारे फ्री सोर्सेज लाइक यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम PDFs वो यूज़ करी, एंड विद इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ही वॉज एबल टू क्लियर इट. सो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट. So Saurav, I would want you to share something if you would like to. We say Rome wasn't built in a day. So like I started preparation for NABARD after notification, but I was indirectly preparing for this exam from a long time. So like in mains we have a descriptive paper. So for that I was writing a diary daily. So from last 6-7 years daily I used to write diary. So I know how to express my thoughts on paper and similar like these things which will help me. And my hobbies was to read novels. So it helped me to explore other views. That's all. Saurav, आपने बताया था कि you refer to our YouTube channel. So is there any familiar faces here which you can recognize? Yes, like Shamli ma'am and and there was a Gaganpreet sir there. Gurkirat sir. Gurkirat sir. And he was also mentioning about Jalaj sir. Yes, Jalaj sir. So his computer and that decision making, that really helped me a lot. Yes. So Saurav, we have this achiever badge for you. You can wear it. Thank you, ma'am. Okay, and these are some books that we hope will help you in your career growth, and a plant also. Thank you, ma'am. Okay. So thank you, team. Now we'll proceed for the interview. Hi everyone, welcome to EduTap, and today we are here to celebrate one more success story. So aspirant, we have today with us Mr. Saurav Negi, and Saurav has cleared NABARD Grade A 2023 exam from IT specialist post. तो सौरभ ने बहुत सारे मिथ्स है जो बर्स्ट किए हैं रिगार्डिंग स्पेशलिस्ट पोस्ट. यूजुअली एस्पिरेंट्स को लगता है कि स्पेशलिस्ट पोस्ट में जनरली जर्नलिस्ट से कम पोस्ट होती हैं, देन ARD बड़ा चैलेंज होता है, टाइम फ्रेम जो होता है नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के बीच में वो सफिशिएंट नहीं है क्लियर करने के लिए. बट सौरभ हैज़ मैनेज्ड to overcome all these challenges and he has managed to clear this NABARD examination in his first attempt. So first of all, I welcome you, Saurav. Thank you very much, ma'am. And Saurav, so talking about Saurav, he is from IT background and he was working aspirant. इन्होंने TCS में काम किया है and while he was working, उन्होंने preparation की है बहुत सारे government jobs की. So NABARD के बारे में इन्हें 2022 में पता चला and 23 में notification के बाद इन्होंने solely dedicatedly NABARD के लिए पढ़ा and he has managed to clear it, crack it. So first question to you, Saurav, is that NABARD कैसे आया? Like what was the role of your family first of all in the एजुकेशनल बैकग्राउंड, सपोर्ट क्या रहा घर का, एंड आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे ऑलरेडी, तो आप NABARD की तरफ शिफ्ट कैसे हुए? लाइक आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे थे बट NABARD कैसे रोल में आया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज बॉर्न इन उत्तराखंड, UK इन शॉर्ट. सो बट जो मेरा पूरा अपब्रिंगिंग है पंचकुला में हुआ, चंडीगढ़ से मैंने +2 किया मॉडल स्कूल से. देन मेरा एक ड्रॉप ईयर था, JEE मेंस क्लियर नहीं होता, बट फिर मेरा जो एडमिशन मिला मुझे एक मेडिकल इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में मिला था. बट फिर मैं ताऊजी ने कहा कि नहीं करना है तो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में करना है, क्योंकि वो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थे. तो मैंने उनके एग्री किया डिसीजन से. फिर हमने CGC लांड्रा मोहाली से ये BTech कंप्यूटर साइंस किया, और वहीं से और जो मेरा पूरा इंजीनियरिंग फीस था वो मेरे अंकल आंटी ने फाइनेंस किया. एंड आफ्टर दैट
I got placement from my college in global logic. Then I switched to TCS, and from BTech last year I was clear that I have to go to the government sector because I knew my personality that it suits me. And in government sector, like to live a, like Chetan Bhagat in his video has said that to live a better life, there is 3 fundamental pillars like career, health and relationship. So you have to maintain balance between them. So मेरे को लगा कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में रह के इन तीनों चीज़ों पर बैलेंस रख पाऊंगा, तो मेरा मेजर कंसर्न ये था। और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी बहुत सारे एग्जाम दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफेंस लाइक CDS, FCAT, देन SSC, CGL, CHSL, CPO, सिलेक्शन पोस्ट, बट ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर मैं सोचा कि जब एक प्रोवर्ब है कि if you are not able to play the ball, improve your technique. Even if you are not improve your technique, then change the playground. Like play in that ground which is which supports your conditions. तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम देखने स्टार्ट किए जो मेरी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हो। तो IT स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जैसे बहुत सारे एग्जाम आते हैं, IAPS, SO, हर एक बैंक एग्जाम कराता है, SEBI के RT आते हैं, नाबार्ड के। तो मुझे नाबार्ड के बारे में पता चला, बट जो नाबार्ड 22 पता चला, फिर मैंने सिलेबस चेक किया तो उसमें एग्रीकल्चर था। तो फिर मेरा एग्रीकल्चर देख के मैंने नहीं भरा उस टाइम पे 22 में। फिर जब नेक्स्ट ईयर 23 में दोबारा से नोटिफिकेशन आया, तब मैंने सोचा इस बार एक बार कट ऑफ से चेक करते हैं। फिर जब कट ऑफ चेक किया, कट ऑफ वॉज वेरी लो। फिर आई थॉट कि जब मैंने बीटेक करना पड़ा है, अगर हम थोड़ा उसका भी 5-10% लगाएंगे तो इतना कट ऑफ लाया जा सकता है। फिर देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर NABARD एंड दैट्स हाउ आई क्लियर इट। ओके, सो यू टोल्ड अबाउट कि लाइक आपने बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी की, तो क्या आपको लगता है कि उन एग्जाम्स ने आपको हेल्प किया NABARD की प्रिपरेशन में? Yes, there is a proverb like Rome wasn't built in a single day. So like officially I started the preparation of NABARD after the notification came. But I believe, when I look back of each stages of NABARD, I feel like all the stages which ask in NABARD, I have been preparing indirectly, like in descriptive means rating पूछते हैं आपकी। वो मैं डायरी पिछले 5-6 साल से हर रोज डायरी लिख रहा था। फिर उसमें से क्या हुआ, जो मेरे थॉट्स है उनको मैं इजीली एक्सप्रेस करता हूँ पेपर। एंड फिर मेरी जो हॉबी थी बुक्स पढ़ना, इससे मेरा माइंड थोड़ा ओपन हो रहा था कि हर चीज़ों के बारे में ऐसे। और फिर जो मेरा IT स्ट्रीम का था ही, उसने मेरे को बहुत कुछ हेल्प किया NABARD में। सो एस्पिरेंट्स, एज यू कैन सी दैट ही इज टेलिंग कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ सिंगल डे। सो अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, यू आर कंसिस्टेंट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, सो जस्ट हैव दैट माइंडसेट कि कोई भी एग्जाम के साथ यू कैन क्लियर एनी अदर एग्जाम इफ द यू हैव सम कॉमन एरिया। NABARD के साथ भी बहुत सारे बच्चे UPSC फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड दे कम टू अस एंड दे आस्क लाइक कि NABARD के साथ ये प्रिपेयर कर सकते हैं या इसके साथ NABARD हो जाएगा। सो यू कैन सी यू हैव अ लाइव एग्जाम्पल, ही हैज़ क्लियर्ड इट, ही हैज़ मैनेज टू क्लियर इट। सो दैट्स ग्रेट टू नो। सो सौरभ, सी NABARD जब एग्ज़ाम की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन एंड जब वैकेंसी जब हम देखते हैं तो स्पेशलिस्ट पोस्ट की वैकेंसी कम ही होती है एज़ कम्पेयर टू जर्नलिस्ट पोस्ट। दो आई एग्री कि कंप्यूटर साइंस के लिए या IT के लिए थोड़ा नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा ही थी और स्पेशलिस्ट पोस्ट से, फिर भी स्टिल बच्चों को एक फेयर रहता है कि लाइक इतने कम पोस्ट हैं तो शायद सिलेक्शन के चांसेस कम हैं। तो क्या वो फेयर आपको भी था, और अगर आपको था तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? मैम, जो हमारी लाइफ है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो होमो सेपियंस जो हमारी रेस यहाँ तक पहुँच पाई है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे पहुँच पाई है। अब ये नहीं कि कोई इंटेलिजेंट है या फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सर्वाइव वो कर पाया है जो उस चेंज को अडेप्ट कर पाया है। तो सिमिलरली अब जैसे NABARD की वैकेंसी कम थी, बट मैं इससे पहले जो एग्जाम्स हुए जैसे SEBI एंड अदर जैसे NPS या PFRD, इनकी वैकेंसी IT स्ट्रीम की 1 या 2 आती थी और मैं उन एग्ज़ाम को देता था। और ये नहीं सोचता कि मेरा होगा नहीं होगा, बट मैं देता था। बेशक कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, बट मैं उस टाइम पे मेंस तक पहुँच पा रहा था। तो फिर जब NABARD की आई, NABARD में तो जनरल स्ट्रीम के लिए 15 वैकेंसी थी, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखने का नज़रिया आपको क्या पॉजिटिव चीज़ देखें। एग्जैक्टली, सो यही चीज़ मैं एस्पिरेंट को भी बोलूँगी, यू हैव टू सी द पॉजिटिव साइड एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर सब्जेक्ट एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि यार मैं कर लूँगा या कर लूँगी, सो एवरीथिंग इज़ डूएबल। ओके, आपके पास 2 या 3 भी वैकेंसी है किसी स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए, अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हैं एंड यू कैन पुट योर एनर्जी टाइम इन टू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो सौरभ, आपने बताया कि आपने प्रिपरेशन नोटिफिकेशन आने के बाद स्टार्ट की। सो थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताओगे। पहले तो कैसे डिसाइड किया नोटिफिकेशन आने पे कि लाइक ओके चलो NABARD करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, एंड देन स्टार्ट कैसे किया, कौन से चैनल, कौन से सोर्सेज फॉलो किए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो जैसे नोटिफिकेशन आया था तो फिर पता था कि अब इसका एक विदिन 1 मंथ इसका होगा एग्ज़ाम। अब ये था कि अगर मैंने कोर्स देखे थे इनके ऑनलाइन, से एडुटैप है, अनुज जिंदल के कोर्स होते हैं, बट मैं सोचा कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, अफोर्ड भी करता हूँ, बुक्स भी लेता हूँ, बट वो वर्थ नहीं होगा, मैं उनको पढ़ ही नहीं पाऊँगा, वो तो फिर अब मैं घर ही भर रहा हूँ अपना, वो फ़ायदा। फिर मैं सोचा कि एक प्रिंसिपल है पैरेटो प्रिंसिपल विच से 80-20, कि जो 80% ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो 20% ऑफ सिलेबस से आते हैं।
तो फिर मेरा वो था कि मुझे उस 20% पे फोकस करना है कि मैं जो भी है उस 20% सिलेबस को ढूंढूंगा। तो फिर से मैं जो भी एडुटैप के जो यूट्यूब चैनल पर फ्री कोर्सेज थे मैंने उनको फोकस किया प्री के लिए। Okay, so guys, see, he is also saying that you have to put your 20% effort there where you get the 80% of your success, right? So again, we always highlight this. There are some important areas, there are some important part in your syllabus that you have to focus majorly, and आप उसी important syllabus को करके you can crack the examination, and he has done it. So सौरभ, आपकी phase 1 की preparation कैसी रही? मतलब आप phase 1 में we have 8 subject, 5 are of non-merit and 3 are of merit section. उसमें से भी ओके वी एग्री कि आपने पहले ही एग्जामिनेशन दे रखे हैं तो आपके लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कंपैरेटिवली ईजी रहा होगा। टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग, आपने वो कैसे प्रिपेयर किया? कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग के लिए जो एडुटैप के जो सर हैं जलक सर, दैट रियली हेल्प। उनका जो कंटेंट था वो बहुत ही हेल्पफुल था और वो मोर देन सफिशिएंट था। और उनके जो टेलीग्राम से जो नोट्स थे 100-200 क्वेश्चन के, उन्हीं को मैं 3-4 बार रिवाइज किया था, वो मोर देन सफिशिएंट था। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो ARD, ESI जो हमारे जनरल जीके क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स, वो सब मैंने आप ही के शामली मैम, एकता मैम और गुरकिरत सर के जो थे स्कीम्स रिलेटेड, उन सभी को मैंने अच्छे से किया था, नोट्स को रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। ओके, तो आपने बेसिकली यूट्यूब चैनल्स देखा, यू वेंट थ्रू द वीडियो एंड यू मेक द नोट्स। हाँ जी। ओके, एंड सो अब ये तो रही नॉन मेरिट सेक्शन की बात। अब मैं थोड़ा सा मेरिट सेक्शन में और डिस्कस करना चाहूँगी आपसे कि लाइक मेरिट सेक्शन में होता है ARD, ESI एंड GA, राइट? तो अब ARD, ESI में ऐसा नहीं है स्टैटिक ही पढ़ना है, करंट अफेयर भी पार्ट है उसका। तो आपने करंट अफेयर के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखी? करंट अफेयर के लिए जैसे गुरकिरत सर का ये हर एक मंथली कंपाइलेशन आता है 75-100 क्वेश्चंस का, तो उन्हीं को मैंने मोस्टली फॉलो किया था। हर एक स्कीम्स के लिए जो डाटा फैक्ट्स ला रहे थे उन्हीं को मैंने रिवाइज किया था मल्टीपल टाइम्स, 3-4 टाइम्स को। बट कंटेंट शॉर्ट रखा था मैंने अपना। ओके सौरभ, तो आपने वीडियोस जैसे करंट अफेयर की देखी तो उसके भी नोट्स बनाए थे? हाँ जी। ओके, सो यू बेसिकली वेंट फॉर नोट्स, आपने नोट्स बनाया उन्हीं को रिवाइज किया। ओके, टॉकिंग अबाउट ESI कैसे पढ़ी आपने? ये सब यूट्यूब चैनल है जो भी इनके एंड एग्जाम से पहले एक होता है मैराथन सेशंस आते हैं, फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 150-200 क्वेश्चंस, फिर मैंने उन्हीं को रिवाइज किया था और उन्हीं 150-200 क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज किया कि इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिर मैंने सबको प्रिपेयर किया, फिर जो नोट्स बन गए थे फिर उन्हीं को मल्टीपल टाइम 3-4 टाइम्स रिवाइज किया। ओके, और जैसे आपके बैकग्राउंड के बच्चे जो आते हैं यूजुअली उनके लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, मतलब यूजुअली जनरली और सब्जेक्ट से दे फाइंड कि एग्रीकल्चर थोड़ा टिपिकल है, हमें कोर एग्रीकल्चर पढ़नी है। तो आपने एग्रीकल्चर को कैसे टैकल किया? मीन्स व्हाट सोर्सेज यू फॉलोड फॉर एग्रीकल्चर एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड इट? अब जैसे हमने बीटेक किया है, बीटेक में हमने विद इन 4 ईयर हमें 35-40 सब्जेक्ट क्लियर करते हैं। अगर थोड़ी हम हर 6 महीने पढ़ रहे हैं, उनको भी हम एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ रहे हैं। तो फिर एग्रीकल्चर में टॉप थोड़ी करना है कि, और मेरा क्लियर था कि मुझे रैंक 1 तो लानी है, मुझे जस्ट क्रैक करना है, कट ऑफ क्लियर करना है मेरे को। तो इसलिए मेरे कंटेंट कम ही रखा था मैं हमेशा। ओके, सो आपने जनरली यूट्यूब या जो टेलीग्राम PDF है आपने वही गो थ्रू किया एग्रीकल्चर के लिए, जबकि स्टैटिक वहाँ पे ज़्यादा आता है, राइट? तो सो एस्पिरेंट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू गो फॉर कोर एग्रीकल्चर, राइट? सो हम हमेशा ही बोलते हैं एग्रीकल्चर बहुत जेनेरिक पूछी जाती हैं एंड यू हैव टू जस्ट क्लियर द मिनिमम कट ऑफ इन एग्रीकल्चर। अगर आपको और सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है तो यू कैन क्लियर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ NABARD grade A. So now that was regarding the phase 1 of your preparation. तो phase 1 के बाद आपने क्या किया? आपने मेंस की तैयारी कंटिन्यू की या फिर आपने वेट किया रिजल्ट आने देते हैं फिर देखेंगे, लाइक यू वर स्केप्टिकल? क्या रिएक्शन था उसके बाद आपका? फेज़ 1 के बाद तो क्लियर मेरे को खुद पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, बट एटलीस्ट मैंने सोचा था कि अगर इन केस क्लियर हो गया, क्योंकि अगर मैं वेट करूँ रिजल्ट का तो फिर टाइम बहुत कम बचेगा, 15-20 दिन, तो उसमें कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जो फेज़ 2 में जो हमारा मेंस में 2 पेपर थे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 हमारा इंग्लिश का होता है तो उसका मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, बट पेपर 2 जो होता है हमारा IT स्ट्रीम के रिलेटेड उसका मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। अब जैसे 80% ऑफ सिलेबस हमारा कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम का था। अब इसलिए क्या था, जो मेरा बीटेक का जो था हमारे सब्जेक्ट्स वही सारे क्लियर होते। और बीटेक में जो हमारे जैसे मेरे क्या था टीचर्स थे मेरे, दीपिका सूद मैम, उन्होंने क्या किया था, मैं जैसे क्लास में बहुत ज़्यादा बोलता था तो पीछे बैठता था, हम 3rd रो के पीछे। तो टीचर कहते थे जब भी वो आते थे तो मेरे को उठा के सेंटर रो में आगे करते थे, और सेंटर रो गर्ल्स के होते सीट, क्योंकि और उनको हम बोलते पप्पू गैंग, क्योंकि हमेशा सिर्फ पढ़ाई के बारे में करते थे चीज़ें। जब वहाँ बिठा देते थे तो फिर मेरे लिए मुश्किल होता था ना कि अब मैं बात कर नहीं सकता, और अब गर्ल्स के उस टाइम में मैं थोड़ा शाय भी था, तो गर्ल्स से आप बात नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हार्ट बीट आपकी 150-200 पे चलती है। तो फिर ये था कि अब पूरे से लेक्चर में आपको सिर्फ टीचर को देखना है और ब्लैक बोर्ड को देखना है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो भी सारा मैम ने पढ़ाया तो वो मेरे माइंड में छपा रहा, और ये मेरे साथ कम से कम 3 सेमेस्टर चला। तो मेरे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऊप्स कंसेप्ट और ये DBMS, तो ये मेरे सारे सब्जेक्ट्स ऐसे स्ट्रॉन्ग हो गए थे और हो गया था। और बाकी जो 20% सिलेबस था वो अलग था, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, यस ये तो मैं अलग से पढ़ा था बस। तो सौरभ, आईटी के लिए जैसे अलग सिलेबस होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, स्पेशलिस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस होता है, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी? आपने सिलेबस को पहले देखा और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन की, मेंस की? हाँ जी, मैंने सबसे पहले सिलेबस को गो थ्रू किया, फिर एक था हर एक सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट पूछेंगे नहीं आपसे, पर जो सब्जेक्ट का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को कवर किया था मैंने हाईलाइट, क्योंकि उनके रिलेटेड MCQ कवर हो जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा। अगर मैं पूरे सब्जेक्ट को कवर करने जाता तो ऐसे मेंस IT के लिए 15-20 सब्जेक्ट आते हैं, तो आप 15-20 कवर कर नहीं सकते, तो आपको हर एक वो 15-20 में से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं जिनसे वो 80% कवर हो जाए। ओके, मतलब आपने सिलेबस देखा अपनी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की। ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव के लिए, सॉरी, द पेपर 1 विच इज़ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सॉरी, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? डिस्क्रिप्टिव के लिए जैसे मैं क्या था, मेरी डेली हैबिट थी कि मैं डायरी लिखता था, तो मेरे को क्लियर था कि जो मेरे थॉट्स हैं उनको मुझे कैसे पेपर में लाना है, और क्या मेरे नॉवल से पढ़ता था, तो फिर मैं था कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव आकर मुझे कोई एग्जांपल देना है लाइफ। जैसे पेपर 1 में मेरा ऐसे था, ऐसे में होता है 3 टाइप के आते हैं ऐसे, एक होता है आपका जनरल ऐसे और एक होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड ऐसे। तो ये होता है कि आपको किसके रिलेटेड लिखना है, तो मेरा जो जनरल ऐसे था वो मेरा ऐसे था कि वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस करना, कि इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। तो इसे मैंने एक प्रोवर्ब डाल था एंड में कि अगर आप हमें ज़िंदगी भर काम के पीछे नहीं भागना है, तो अगर आप भागते रहोगे आप रैट रेस में फंस जाओगे। अगर रैट रेस में आप जीत भी गए आखिरी में, तो आप आखिरी में रैट ही रहोगे, या फिर आप ज़्यादा चूहों के राजा कहलाओगे। तो इसलिए हमें थोड़ा बैलेंस लेकर चलना लाइफ में, कि आप ओपन पर्सनैलिटी हो। ओके, सो मतलब आपने ये मेंस इस तरीके से दिया। तो और एस्पिरेंट्स, आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट एज सौरभ सेड कि उन्होंने फेज़ 1 के बाद वेट नहीं किया, ही जस्ट स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन ऑफ फेज़ 2। सो दैट इज़ द डाउट जो बच्चों के अंदर रहता है कि फेज़ 1 पता नहीं कैसा रहा होगा, फेज़ 2 के लिए तैयारी करें ना करें। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर योर फेज़ 1 एग्जाम कंप्लीट। ओके, सो दैट वाज रिगार्डिंग योर फेज़ 2 प्रिपरेशन। एंड देन क्या था, आपने फेज़ 2 के बाद सीधे इंटरव्यू की तैयारी करी, या फिर यू वर कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा, मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट थे कि होगा नहीं होगा, लेट्स सी द रिजल्ट एंड देन विल सी द इंटरव्यू? अब जो फेज़ 2 का जो हमारा ये IT रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसने कहा कि जो 15 नंबर क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट तो मैंने टॉपिक में पढ़ रखा था, बट वो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ रखा था, तो फिर मैं उस आंसर को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाया था। बट मैं क्या था अटैम्प्ट, बट उन्हीं क्वेश्चन मैं थोड़ा श्योर नहीं था कि क्लियर होगा नहीं होगा, तो फिर मैंने वेट किया था उसके लिए। और मैं श्योर था अगर इंटरव्यू का मुझे कॉल आ गया, तो फिर मैं जो कॉर्पोरेट में जो हम इंटरव्यू देते हैं, जो क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है, तो उसका जो मैं काम कर रहा हूँ तो फिर मैं इजीली कर पाऊंगा क्लियर। तो मैंने वेट किया था। ओके, तो मतलब जो आप जॉब कर रहे थे वहाँ से आपको यू वर कॉन्फिडेंट कि मैं इंटरव्यू में अच्छे से तैयारी के साथ दे जा सकता हूँ। ओके, सो इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस रहा? लाइक यू हैव ऑल्सो शेयर्ड अ फोटोग्राफ विद अस कि जहाँ पे आप इंटरव्यू डेट में तैयार होके जा रहे हो। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड नाउ आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी आपका इंटरव्यू जगह है वहाँ पे आप टाइम पे पहुँचे। अब जैसे मेरे प्री और मेंस दोनों पटियाला और ये डेरा बसी में था, तो ये मेरे घर से बहुत दूर थे, तो वहाँ पे मैं टाइम पे पहुँच पा रहा। अब जैसे कि अभी इंटरव्यू मेरा वहाँ पे हुआ चंडीगढ़ में, और ये मेरे घर से 10 मिनट रास्ता है, और इंटरव्यू में मैं मोस्टली मैं 1 घंटा लेट पहुँचा रिपोर्ट टाइम से। तो इसलिए कि आपको थोड़ा टाइम पे पहुँचे, बेशक वो पास हो के। और इंटरव्यू के लिए मैंने पूरा जो भी आइडियो टाइप का जो स्टडी मेटेरियल था वो गो थ्रू किया था। और उसके अलावा जो मेरा इंटरव्यू था वो मेरा जो भी क्वेश्चन पूछे मुझसे सारे मेरे टेक्निकल रिलेटेड पूछे, और जो IT इनिशिएटिव्स क्या हैं ये सब पूछा। और आई वांट टू स्पेशली थैंक दैट ईशी जैन जो मेरे को लिंक्डइन के थ्रू मिले थे, और उन्होंने मुझे गाइड किया था कि आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। और फिर मैंने सिर्फ उन्हीं को टॉपिक्स में 2 फील्ड्स भी आती, फिर मैंने को कवर किया, और मेरा इंटरव्यू उसी के अराउंड रिवॉल्व किया 10-12 मिनट। ओके, तो आपके जो क्वेश्चंस थे वो टेक्निकल ज़्यादा थे या जेनेरिक थे, या फिर थोड़ा एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड कुछ पूछा? मतलब थोड़ा सा आप बता पाओ। तो मेरे लिए कोई जनरल क्वेश्चन था, तो स्टार्टिंग में उन्होंने मेरे टेक्निकल स्ट्रीम से किया, जो मेरे स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे। और जैसे जो भी जैसे डाटा बेस के, डाटा वेयर हाउस, डाटा मार्ट के क्वेश्चन पूछे। उसके बाद जो नाबार्ड की IT इनिशिएटिव्स हैं ये पूछे, और एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में पूछा था। तो आपके पास नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चन आए? हाँ जी, उन्होंने पूछा। फिर मैंने बोला था कि अब नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट मैंने सिर्फ 1 दिन पहले ही पढ़ा था इंटरव्यू से पहले, क्योंकि अब मैं 1 दिन पहले वर्किंग कर रहा था, ऑफिस काम कर रहा था। तो फिर रात को मैंने आई स्टिल रिमेंबर कि उस रात में सिर्फ 3 घंटे सोया था, क्योंकि और मैंने उस रात को ही मैंने सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी। आई स्टिल रिमेंबर 250-300 पेज की रिपोर्ट थी, बट मुझे पता कि मैं 250-300 पेज में पढ़ नहीं पाऊंगा। तो फिर मैंने IT रिलेटेड जो टॉपिक्स थे मैंने सबको गो थ्रू कर दिया था, और फिर वही चीज़ मेरे को काम आ गया था इंटरव्यू में, फिर वही चीज़ मैंने बताया था। ओके, तो बेसिकली आपने एनुअल रिपोर्ट में अपने स्ट्रीम से रिलेटेड सब कुछ गो थ्रू किया, एंड वही आपके हेल्प आया इंटरव्यू में। सो दैट्स वेरी गुड टू नो, एंड आई थिंक इससे भी
एस्पिरेंट को एक इनसाइट्स मिलेगा कि अगर आप स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए जाते हो तो यू शुड नो अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड नाबार्ड तुम्हारे क्या काम कर रहा है एंड उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. सो विद दैट, सो जब रिजल्ट आया, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली, आपने सबसे पहले किसको शेयर किया? सो वांट टू शेयर समथिंग अबाउट दैट. सो बेसिकली इसका रिजल्ट 21 फेब को आया था. तो शाम को 5 बजे मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था जो मेरे साथ इंटरव्यू देने गया था. तो और मुझे गैस लग गया था कि वो मुझे पक्का तभी कॉल कर रहा है कि रिजल्ट आ गया है. बट मेरा उस टाइम एक क्लाइंट कॉल चल रहा था. फिर मैं उसको रिवर्ट बैक किया कि मैं शाम को करता हूँ बात. फिर शाम को मेरी कॉल ज़्यादा लंबी चल गई थी तो मैं 9 बजे फ्री हो पाया. फिर जब मैं 9 बजे से कॉल किया उसने कहा रिजल्ट आ गया है और उसका फाइनल लिस्ट में नहीं था बट उसका वेटिंग लिस्ट में नाम था. तो फिर मैंने कहा भाई मेरे को तो डर लग रहा है क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा जब कोई एग्ज़ाम देता हूँ मेरा सबसे बड़ा डर यही होता है कि आप रिजल्ट चेक करना. क्योंकि प्री में आप दे के आ जाओगे, आप हवा में रहोगे, पर जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन आपको पता चलता है कि आप हवा में हो कि पानी में हो. तो फिर मैंने अपने दोस्त को भी बोलता कि ना मैं आपको रोल नंबर बताता हूँ, तुम ही चेक करो. तो मुझे रोल नंबर 10 डिजिट का मुझे अभी भी याद है. तो मैं उसको बताया था और उसने बताया कि हाँ आपका नाम है. तो मैं उसको 3 बार कंफर्म किया कौन सी लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में या फिर फाइनल लिस्ट में. तो फाइनल लिस्ट में. तो आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था. बट फिर अभी तक मैंने अभी घर में नहीं बताया है ये चीज़ें क्योंकि आई स्टिल वेटिंग. और मैं वेट करूँगा जब मेरे दीदी एक बैंक के एग्जाम मैनेजर हैं तो जब वो नेक्स्ट वीक संडे घर आएंगे तो उन्हीं के सामने मैं फैमिली के इकट्ठे बताऊंगा ताकि अगर क्योंकि उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या है नाबार्ड, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चीज़ों के बारे में. तो दीदी बैंक में तो वो एक्सप्लेन करेंगे. बाकी फ्रेंड्स के अभी सिर्फ 1-2 कोई बताया, बाकी जो मेरे मेजर फ्रेंड्स हैं उनको नहीं बताया. उनको फिर मैं सोचा कि स्टेटस डालेंगे प्रॉपर. अच्छा ओके. सो मतलब फीलिंग इज ग्रेट लाइक कि मतलब अभी इसके बाद आपको अच्छा फील हो रहा होगा, थोड़ा रिलीफ फील हो रहा होगा क्योंकि यू वर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट इन द गवर्नमेंट जॉब और नाबार्ड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है विच वी थिंक राइट. सो सौरभ, ये तो आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी रही. तो वी वुड लाइक टू नो दैट एड्यूटैप कैसे इस प्रिपरेशन जर्नी का पार्ट रहा है. 2 आपने बता दिया है कि फेज़ 1 फेज़ 2 में कैसे रहा, बट होलिस्टिकली अगर आप बताओ तो एड्यूटैप ने कैसे आपकी हेल्प की है इस जर्नी में? अब जैसे नोटिफिकेशन आया था, अब ये तो मैं था कि बुक्स मुझे लेनी नहीं आया. तो फिर सबसे अब क्या आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अब यूट्यूब में सब कुछ मिल रहा है. अगर आप खोजना चाहो सबको आपका गोल्ड सब यहाँ मिल जाएगा, यूट्यूब मिल जाएगा. अब यूट्यूब में स्क्रॉल किया तो मुझे बता कि इस फील्ड में सिर्फ 2 वो हैं मास्टर्स हैं, जैसे एडुटैप और अनु जिंदल. तो एडिट में हर एक का गो थ्रू किया. एडिटॉप में जैसे शामली मैम आपका और एकता मैम का जो ARD ASA स्टैटिक था उन सब की वीडियोस का मैंने गो थ्रू किया, डाउनलोड किया, टेलीग्राम्स के नोट्स लिए. फिर जो गुरकिरत सर के जो हमारे स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन थे और जो करंट अफेयर्स था मंथली कंपाइलेशन को गो थ्रू किया. और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जलद सर का जो कंप्यूटर का था एंड जो डिसीजन मेकिंग जो सेशन थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे. अगर आप कोई बंदा उनको अच्छे से गो थ्रू कर ले तो कोई और करने की जरूरत ही नहीं देखने की, और हमें सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करना है. और उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस का तो मैंने IT स्ट्रीम को अपने खुद अपना पढ़ा था. और बट डिस्क्रिप्टिव जो पेपर 1 था ऐसे वाला वो भी मुझे हेल्प मिल गया था, क्योंकि पेपर 1 में होता है ऐसे में आपको 5 एक्सपेक्ट्स कवर करने होते हैं. जैसे इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट और एंड में कंक्लूजन ऐसे ही. तो ये सब मैंने प्रिपेयर किया था. और बाकी जो एंड में इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए एडुटैप का एक स्पेसिफिक कोर्स था जो फ्री ऑफ कोर्स था और वो एडुटैप ऐप में अवेलेबल था. तो मैंने उसको पूरा 100% कंप्लीट किया. और उसमें क्या था कि उसमें जो भी लास्ट 2-3 ईयर्स में जो बच्चों के ट्रांसक्रिप्ट है वो अवेलेबल थे. और डैफ के उन्होंने खुद ही क्वेश्चन बनाए थे कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो मैंने सबको गो थ्रू किया था कि अगर मुझसे क्वेश्चन आया पूछेगा तो मैं कैसे उसका आंसर करूँगा. तो ये सब ने अच्छे से बहुत हेल्प किया एडुटैप ने. ओके. सो सौरभ, एक और क्वेश्चन है कि लाइक आप वैसे तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ही रहते काफ़ी टाइम से, अगर नाबार्ड इस बार नहीं होता देन व्हाट वाज योर नेक्स्ट प्लान? तो मेरा जैसे अब लाइफ है बैकअप प्लान होना चाहिए. तो मेरा प्लान एक क्या था, मेरा गवर्नमेंट जॉब था और प्लान भी था मेरा ये प्राइवेट सेक्टर प्लान भी. अब मैंने ये सोचा कि आई विल जब तक मेरी एज लिमिट है 30 साल तो मैं उसका ट्राई करूँगा. अगर 30 साल तक भगवान ने नहीं चाहा कि अब मैं अगर भगवान को चाहता है कि मैं प्राइवेट सेक्टर रहूँ तो फिर मेरा 30 साल का मेरा प्लान भी है प्राइवेट सेक्टर, उसको प्राइवेट सेक्टर में प्लान ए बना दूंगा. बट जो 30 साल तक जो भी गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगा उनको मैं देता रहूँगा, बेशक वो कोई से जनरल हो, IT स्ट्रीम कैसा भी हो. ओके. सो एट लास्ट आप कुछ एस्पिरेंट को बताना चाहोगे अपने एंड से, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अपनी जर्नी के लिए? एस्पिरेंट किस बातों का ध्यान रख सकते हैं, लाइक जो मिथ्स है कि स्पेशलिस्ट पोस्ट में कम आती है या फिर बहुत टेक्निकल आता है, तो उससे रिलेटेड इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग टू एस्पिरेंट? तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अब ये नाबार्ड का एक एग्ज़ाम ही है तो इसको आप एक एग्ज़ाम की तरह लीजिए. ये कोई वो लाइफ नहीं है. सबसे बड़ा एग्ज़ाम हमारा लाइफ का होता है. लाइफ इज बिगेस्ट एग्जाम इज लाइफ, उसमें हमें पास होना है. तो अब ये कहते हैं कि आप बी योर सेल्फ और आप ज़्यादा हो सके आप हेल्प कीजिए लोगों की. अब जैसे मेरे को अब जो मैं नाबार्ड क्लियर किया ये मैंने खुद से नहीं किया, मेरे को हर एक लोगों ने हर एक स्टेज में हेल्प किया है. तो मेरा एक सिंपल सा थ्योरी है, अगर आप सपोज आप 10 लोगों को हेल्प कर रहे हो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट अगर जिस दिन आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी, अगर उसमें से भगवान ने 10 में से किसी एक को आपकी हेल्प के लिए भेज दिया तो आपके लिए वो बहुत हेल्प करेगा और आपको वो कुछ भी क्लियर करने में हेल्प कर सकता है. और
आपको जो भी एग्ज़ाम आ रहा है आप उसको क्लियर करो। आप ये ना सोचो कि मेरा होगा नहीं होगा, आप उसको दो तो सही, क्या पता आप भगवान क्या चाहता है आपके लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जैसे मैं वेब सीरीज नहीं देखता, बट मैंने जो देखा था लास्ट टाइम मनी हाइस्ट, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइफ लेसन सीखने को मिले। जैसे स्टे काम इन एवरी सिचुएशन, आप काम रहिए, यानी आप गुस्से में डिसीजन ले रहे हो या जल्दबाजी में, काम रह के डिसीजन लीजिए, बेशक थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आप नो योर रिसोर्सेज, कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं। जैसे आपको रिसोर्सेज नहीं पता उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हैव अ बैकअप प्लान, कि आपको बैकअप प्लान हो चाहिए। नहीं कि आप जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं कोई और एग्जाम की तैयारी करूँगा नहीं, आपको बैकअप प्लान लेके जाना है। अगर आप मैं सिर्फ यूपीएससी का सोच चलूँगा तो मेरी तो एज ही निकल जाएगी 30-32 साल, फिर उसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आपको बैकअप प्लान लेके चलिए। यूपीएससी तैयारी कर रहे हो आप, साथ में कोई एक्स्ट्रा एग्जाम देखिए जो आपको एक साइड इनकम या फिर आपको जो जॉब दे सके। क्योंकि जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में था तो मैं अपने फैमिली के टाइप ऑफ कोई एक बर्डन नहीं दे पा रहा था, कि मैं खुद कमा रहा था और फिर जो भी फॉर्म्स निकल रहे थे उनकी फीस मैं खुद भर रहा था। तो फिर मुझे तो फैमिली को इतना कंसर्न था ही नहीं कि क्या कर रहा है, मैं जो भी कर रहा डिसीजन मैं खुद ले रहा था। और एंड में ये कहूँगा नेवर गिव अप, कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको ये आपकी लाइफ है, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और आपकी लाइफ आप ही चेंज करोगे। आपकी लाइफ में कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं आएगा कि जो आपकी लाइफ इंप्रूव कर देगा। तो आपको अपने फोकस करना है। और एंड में ये कहना चाहूँगा सक्सेस इज सर्टेन इफ़ यू आर विलिंग टू पे द प्राइस। That's all. Thank you very much. So aspirants, as you can hear that there is lot to take from this interview, and सौरभ ने बताया कि never give up वाला attitude रखो and be focused, have your priorities. Like he has his priority कि मुझे government sector में जाना है, then his plan B was the private. But होता क्या usually, and he also said that with मतलब जब तक मेरी एज लिमिट है 30 साल तक आई विल बी ट्राइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, वेरियस एग्जामिनेशन। सो यूजुअली होता है कि एस्पिरेंट 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, देन दे फील फ्रस्ट्रेटेड, दे फील डिप्रेस्ड कि नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा, लाइक दे हैव दैट नोशन। बट अगैन एज सौरभ सेड कि नेवर गिव अप, बी फोकस्ड एंड ऐसा नहीं है, लिमिट योर रिसोर्सेज एंड लिमिटेड टाइम में लिमिटेड रिसोर्स से अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। So thank you Saurabh for being. I just want to add one line. Okay. So I like in my journey, my friends like Abhay and Jasjit, they really helped me a lot. And apart from the corporate sector, that Akansha, that also really helped me because from looking that she was working on while working on job, she was working on other things also like. So that really helped me, motivated me. Like if they are doing it, I can also do it. So they also played a great role in my success. वेरी गुड। सो येस, इट्स वेरी ऑब्वियस एंड हमेशा हमें थैंक यू करना चाहिए उन लोगों को जो हमारी जर्नी के पार्ट रहते हैं। एंड सो वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम सौरभ्स जर्नी एंड ये शायद IT स्पेशलिस्ट वालों स्ट्रीम के लिए बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यू, बिकॉज उनके काफ़ी नोशंस रहते हैं, काफ़ी फेयर रहते हैं। एंड आई थिंक सौरभ ने जो बातें यहाँ पे बताई हैं दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम दीज फेयर एंड फोकस ऑन योर एग्जाम। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।